हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक शेयर प्राइस जो इंक्रीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 10 साल 20 साल, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है। और हम इस केस स्टडी और रेफरेंस के लिए हम जो सौरभ मुखर्जी का जो रिसेंट इंटरव्यू है ना, वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, तो उस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे। हम इस वीडियो में हम जनरली फोकस करेंगे जो एंटीथेसिस पॉइंट है, हम उसकी तरफ क्यों क्यों आप एंटीथेसिस पॉइंट को फोकस करने से क्या होता है, आपका जो मतलब जो पिक्चर है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सौरभ मुखर्जी ने क्या बोला है उस मतलब इंटरव्यू में, तो उसको हम थोड़ा पहले देखेंगे। उसके बाद हमारा जो अपना केस स्टडीज है उसको डिस्कस करेंगे। In a case that the P multiples have to contract purely because of the expansion which has happened in the past, which has been higher than the earning expansion. Right. So I think the first thing to realize is what drives stock prices is not earnings. What drives stock prices is free cash flows. And if you take the typical company that we invest in, whether it's in our Little Champs portfolios, where last week we opened it for inflows after 2 years, or in our flagship consistent compounders portfolio, whether it's in our small caps or in our large cap portfolio, what we have seen over the last 2 years, the last 5 years is profit compounding in India in well-run companies tends to be between 15 to 20%. So if it's a larger company like Asian Paints, Pidilite, profit compounding is around 15%. If it's a smaller company like, say, an Alkyl Amines or a GMM Pfaudler, profit compounding would be around 20%, right? But free cash flow compounding, which is the real driver of share prices, whether it's an Asian Paints or a Pidilite, large companies, free cash flow compounding 25%, even through the last 3, 4, 5 years. And then the smaller stocks, the Little Champs franchises, as we call them, free cash flow compounding is around 35%. So this difference, right, is big. If a company compounds, if a company as big as a Asian Paints or a Pidilite compounds profits at 15, but cash flows at 25, and it's the cash flow compounding which is driving the stock, optically, the PE multiple will look high because the P is not following E. The P is following free cash flow. So if I give you an extreme example, Astral Poly, over the last 10 years, profits are up 5x, free cash flow is up 100x, share price is up 100x. Right? And we spend a lot of time explaining this to people, that what drives share prices is not profits. Astral Poly's profits are up 5x in 10 years. Free cash flows are up 100x. You need to follow the cash, not the PAT. Follow the cash and not the PAT, and you'll make good money in India. Even through the current fiscal that's going to end today, free cash flows are up very, very strongly for almost all our investee companies. देखिए, फर्स्ट जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो एशियन पेंट्स का है। ये स्क्रीनर से मैंने एशियन पेंट्स का जो 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट मैं ये ओपन किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एशियन पेंट्स का मान लीजिए 10 साल का ही करेंगे, क्योंकि देखिए 5 साल या 3 साल 1 साल में वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो वहां से कंपेयर करना चीजों को वो मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 साल का करेंगे शेयर प्राइस। आप देख लीजिए, ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट आप इसको 400 पकड़ लीजिए वो कैलकुलेशन के हिसाब से, और अभी जो क्लोजिंग हुआ है तो वो 3053, तो रफली आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, राइट, क्योंकि 400 से आप 3053, तो मैं 3200 पकड़ लिया हूं, तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। तो आप यहां से देख लीजिए शेयर प्राइस 8 टाइम्स। नाउ गो टू पैट। ठीक है, थोड़ा नीचे, हाँ यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे 2012 में आप कंसिडर करेंगे ना, इसको आप पकड़ लीजिए रफली 1000 पकड़ लीजिए, और यहाँ पे आ गया 3000, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो यहाँ पे तो सही है कि आपका जो शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है ना, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, अब चले जाते हैं कैश में। कैश में देखिए, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हम मान लीजिए इसको कंसिडर करते हैं 2011 को, तो 2011 में आप इसको पकड़ लीजिए 800, तो आप यहाँ पे देखिए 3683, तो आप इसको मान लीजिए 4 टाइम्स, राइट।
आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो मार्च से देखिए 710, तो और वहां से आप 896 तो ऑलमोस्ट 1.1%, मतलब 1.1। तो मुझे लगता नहीं कि ये आपको करना सही रहेगा, अदरवाइज जो पूरा थीसिस है ना ऊपर वाला, तो वो पूरा नेगेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इसको करना चाहेंगे, इसको पकड़ लेते हैं। 2013 में इनका जो नेट कैश फ्लो था, देखिए कैश का मतलब वही होता है, इधर यू टेक ऑपरेटिंग एक्टिविटी और अदरवाइज नेट कैश। तो नेट कैश 2013 में 123 था, लेकिन आप देख लीजिए, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैश फ्लो फाइनेंसिंग में बहुत पैसा चला गया, तो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेशन एक्टिविटी, यहाँ से भी पैसा नहीं आया, देख लीजिए। तो हम इसको पकड़ते हैं, तो 2492, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो कैश फ्लो ऑलमोस्ट 20%। तो अब कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वहां पे आपका 4 टाइम्स आ रहा है। नेट कैश फ्लो वो आप सोच लीजिए, आप ये जो ऊपर वाला पकड़ेंगे ना, सॉरी ये जो नीचे वाला पकड़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स आता है। और आपका जो शेयर प्राइस है ना वो और 8 टाइम्स आता है। तो यहां से जो स्टेटमेंट है ना सौरभ मुखर्जी का, वो स्टेटमेंट देखिए पार्शियली करेक्ट होता है। ठीक है, और हम और एक दो मतलब केस स्टडीज भी देखेंगे जहां पे ये जो स्टेटमेंट है ना ये 100% करेक्ट नहीं है, पार्शियली इट इज करेक्ट। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो एस्ट्रल पॉली के बारे में। ये पहले एस्ट्रल पॉली था, अभी ये एस्ट्रल लिमिटेड हो चुका है। और यही जो स्टॉक है ना, यही स्टॉक सौरभ मुखर्जी ने मेंशन किया था अपना इंटरव्यू में। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं पहले, वही 10 साल का देख लेंगे। 10 साल में देखिए ये स्टॉक कमाल का रिटर्न दिया है। आप इसको पकड़ लीजिए 24 टू यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 18232, तो ऑलमोस्ट आप इसको पकड़ लीजिए 90 टाइम्स, ऑलमोस्ट रफली 90 टाइम्स उसका मतलब रिटर्न दिया है। सौरभ मुखर्जी ने 100 टाइम्स बोला है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ऑलमोस्ट वैसे ही है 90-95 टाइम्स। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट पे। देखिए जब यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आप किसी को एक पकड़ लीजिए। आप 2012 ऐसे 2012 से आप 2022 तक करेंगे ना, रफली इसको 40 पकड़ लीजिए। 40 पकड़ लीजिए तो 517, तो मैं यहाँ पे 520 कर देता हूँ, वो इजी होता है। तो आप इसको देख लीजिए 13 टाइम्स। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे 30 को रखेंगे और यहाँ पे 400 समथिंग, तो वो वही होगा। आई थिंक ये थोड़ा 10 टाइम से ज़्यादा होगा। तो आप इसको रफली एक कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 और 13 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टॉक प्राइस है वो गया है ऑलमोस्ट 90 टाइम्स, और ये जो नेट प्रॉफिट है ना ये 12 to 13 टाइम्स गया है। तो जो सौरभ मुखर्जी का स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे पर्सनली करेक्ट होता है अगेन। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। देखिए कैश फ्लो ऑपरेशन में आप किसी एक को पकड़ लीजिए, इधर आप ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे 50 करोड़ पकड़ लीजिए, तो आज यहाँ पे 664 करोड़ है। तो देखिए 664 करोड़ मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आप नीचे का भी आप पकड़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए 6 करोड़ से भी मैं पॉजिटिव वाला ही लूंगा, तो ऑलमोस्ट देखिए 10 टाइम्स हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए एस्ट्रल पॉली का जो शेयर प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट 90 टाइम्स गया है, लेकिन उसका जो नेट प्रॉफिट वो भी 10 टाइम्स या 12 टाइम्स आप जो पकड़ लीजिए। जो नेट कैश फ्लो गया है ये भी 12 to 13 टाइम्स हुआ है। तो जो उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है ना यहाँ पे भी पार्शियली करेक्ट होता है। देखिए मैंने एस्ट्रल पॉली और एशियन पेंट्स को छोड़ के उनका जो मार्सेलस का जो सीसीपी पोर्टफोलियो है ना वहाँ पे नेस्ले है या पेज इंडस्ट्री, मैं वहाँ पे भी देख लिया हूँ कि वहाँ पे जो सौरभ मुखर्जी का जो स्टेटमेंट है ना वो पार्शियली करेक्ट है, पूरा 100% करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो डायरेक्ट उनका जो आप बोलिए लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है वहाँ पे उन्होंने बोला था कि दो जो मेन शेयर है जिन्होंने अच्छे से वेल्थ क्रिएट करके दिया था, उसमें से एक है GMM Pfaudler।
तो आज हम यहाँ पे देखते हैं GMM फॉर्मूला का क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पे भी वही सिचुएशन है या यहाँ पे भी वही पार्शियली करेक्ट है। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए GMM फॉर्मूला का आप 10 इयर्स का चार्ट देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो शेयर प्राइस है वो कमाल का परफॉर्मेंस किया है, वो है 50x ऑलमोस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको 80 पकड़ लीजिए रफली, और यहाँ पे आपको 4000, तो आप इसको 50 टाइम्स आप पकड़ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट में आप देख लीजिए, आप कोई भी ईयर को पकड़ सकते हैं। 2000 आप रफली 12 को पकड़ रहे हैं तो 10 टाइम्स, तो 10 से ये डायरेक्ट 73, तो आप सोच लीजिए 7 टाइम्स रफली। और आप 11 से करेंगे तो 12 से 73, तो आप लोग मान लीजिए इसको 6 टाइम्स। ठीक है, तो आप शेयर प्राइस जो है वो 50 टाइम्स गया है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 6 टाइम्स और 7 टाइम्स गया है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हम इसको देखते हैं ऑलमोस्ट 80 से आप सबसे कम तो 8 है और यहाँ पे सबसे ज्यादा 157 है। तो मैं यहाँ पे 8 को रफली आप इसको 10 पकड़ लीजिए, तो 10 से ऑलमोस्ट 15 टाइम्स हुए हैं, राइट। तो थोड़ा कम होगा तो 14 टाइम्स आप पकड़ लीजिए इसको। ठीक है, तो 14 टाइम्स, और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उन्होंने किया था, तो 10 यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो आप इसको 200 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 196 के, तो यहाँ पे भी 20 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो शेयर प्राइस है ना वो नीदर कैश फ्लो को सही किया है, मतलब कैश फ्लो को सॉरी नेट जो प्रॉफिट है उसको भी बीट कर दिया है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसको भी ये बीट कर दिया है GMM फॉर्मूला। देखिए अब हम लोग और एक शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है अल्काइल अमीन्स। देखिए अब यहाँ पे भी देखेंगे कि देखिए इनका जो 10 साल का रिटर्न है वो कमाल का रिटर्न है। आप 20 से पकड़ लीजिए, अभी 3000 में है, तो ऑलमोस्ट 150x। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर में नहीं जाएंगे, एकदम पूरा सालाना में चले जाएंगे। देखिए आप इसको 10 करोड़ पकड़ लेंगे ना, तो अभी इसको 300 करोड़ ऐसा कुछ पकड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 30 टाइम्स होता है। ठीक है, 30 टाइम्स, और आप मान लीजिए थोड़ा 270 कर लेंगे, तो 30 से 100 जस्ट 29 टाइम्स होगा, और या 27 टाइम्स होता है। ठीक है, आप 10 करोड़ से पकड़ लीजिए, तो क्या होता है कि शेयर प्राइस आपका ऑलमोस्ट 150x, यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 30 टाइम्स, या उससे थोड़ा कम होगा वो 27 टाइम्स। एंड उसके बाद हम चले आएंगे ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में ना आप कोई एक को पकड़ लीजिए, मैं यहाँ पे 24 करोड़ को पकड़ता हूँ, और या आप मान लीजिए इस अच्छा 24 करोड़ ही ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम है, मतलब मैक्सिमाइज करना चाहेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इस 24 से आप देख लीजिए 3650, तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स इसके आसपास होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको आप मतलब नहीं पकड़ना चाहते तो नेट कैश फ्लो को पकड़ना चाहेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे 4 करोड़ को पकड़िए, और यहाँ पे 65, तो यहाँ पे भी वही है 15 टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जो अल्काइल अमीन्स में ऑलमोस्ट आपको उनका जो शेयर प्राइस है ना वो 150x गया है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो 30 टाइम्स गया है या 27 टाइम्स, और उनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और या नेट कैश फ्लो वो मतलब मान लीजिए उसको 15 टाइम्स गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सौरभ मुखर्जी का जो स्टेटमेंट है ना वो भी पार्शियली करेक्ट होता है। देखिए ये जो केस स्टडी मैंने किया है ना, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि मैं सौरभ मुखर्जी को डिफेंड करना चाहता हूँ। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कोई चीज प्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसको आप स्ट्रेट लाइन में मत देखिए, आप उसका कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकता है। और इंडियन मार्केट में ना ये थोड़ा पिक्यूलियर मार्केट है, ये डेवलप कंट्री की तरह तो नहीं है, मतलब यूएस की तरफ नहीं है जहाँ पे हर कोई वो रिसर्च कर रहा है और मार्केट एफिशिएंट है। इंडिया में मार्केट एफिशिएंट होता नहीं है, तो मतलब कोई आपको थ्योरी देता है ना, तो उसका मान लीजिए एक एंटीथेसिस रहेगा ही रहेगा।
तो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया हूँ कि आपके साथ जो एंटीथेसिस पॉइंट्स हैं उसको शेयर किया हूँ, ठीक है। और अभी जो सिचुएशन है ना, ये पिक्चर में आप देख लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर का सिचुएशन यही है। आप कुछ भी मार्केट में खरीद रहे हैं ना, वो आप देख लीजिए 5% ऑलमोस्ट नीचे हो जाता है, तो नेक्स्ट डे अगेन वो 5% आ जाता है नीचे। तो ऐसे करके क्या होता है, 2 दिन में मतलब 10 पॉइंट समथिंग आपका नीचे आ जाएगा। तो अब इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मतलब जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहेंगे तो थोड़ा देख के या ध्यान से कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना दूर तक ही, इस वीडियो का यहाँ पे ही रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट दिल से।